आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट स्टडीज में। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फॉर लूप क्या होता है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप, जैसा कि फॉर लूप हमने पढ़ा था कि फॉर लूप किस लिए यूज करते हैं, तो रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। तो वाइल लूप भी इसलिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। ओके, तो सिंटेक्स कैसा होता है इसका। सबसे पहले वाइल होता है ऑल इन लोअर केस लेटर, देन टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ब्रेसेस ओपन, बॉडी ऑफ while loop, braces closed. So this is the syntax of while loop. Now according to the syntax of while loop we are going to see the working of while loop. Working of while loop. So first of all the test expression is evaluated. Test expression is evaluated. So if the test expression is true, suppose the test expression is true, then we move inside the body of while loop. Move inside the body of while loop. Okay, again the test expression is evaluated. If the test expression is evaluated true, then we move inside the body of while loop. Again the test expression is evaluated. If the test expression is true, then we move inside the while loop. Suppose the test expression is evaluated to be false. So if the test expression is evaluated to be false, then we move outside the while loop. Outside the while loop means here if the test expression is true, then we move inside the body of while loop. Again the test expression is evaluated. If the test expression is true, we move again in the body of while loop. Again the test expression is evaluated to be true, then we move inside the body of while loop until the test expression become false. So suppose the test expression at the end become false. If the test expression is false, then move outside the while loop. This is all about working of while loop. Now let us see the flow chart of while loop. So according to the syntax, we know that first of all test expression is evaluated. Test expression is evaluated. If the text expression is evaluated to true, then we move inside the body of while loop. Inside the body of while loop. So again the test expression is evaluated. If the test expression is evaluated true, then we move inside the body of while loop. Again the test expression is evaluated. If the test expression is evaluated true, then we move in the body of while loop until the test expression is false. So suppose the test expression is false, we'll move outside the while loop. This is the flow chart of while loop. Now we have understood about the syntax of while loop, about the working of while loop, about the flow chart of while loop. Now we are going to see example of while loop so that you can understand while loop in a better way. Example. In the example we are going to take to print integers from 1 to 5. From 1 to 5. Example of while loop. And in the example we are going to take to print the integers from 1 to 5. तो सबसे पहले हेडर फाइल आएगी studio.h, ठीक है। फिर मेन फंक्शन खुलेगा,
and return 0. Now code inside the main function. Now first of all we have to print integer from 1 to 5. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं int टाइप का, int I इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ I एक वेरिएबल है जिसकी मेमोरी एलोकेट हो गई होगी 2 या 4 बाइट की अकॉर्डिंग टू द इंटीजर डाटा टाइप. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप हियर. सो वी नो दैट we have to print the integers from 1 to 5. So the condition here must be the number less than 5 or equal to 5 must be printed, not greater than 5. क्योंकि हमें 1 से 5 तक चाहिए, तो 5 से ऊपर मतलब 6, 7, 8 ये सब नहीं चाहिए हमें. तो यहाँ कंडीशन क्या आएगी, जो नंबर होगा वो किससे स्मॉल होगा, 5 से स्मॉल होगा और 1 से बड़ा होगा. ठीक है, और नंबर 1 है I, तो किससे स्मॉल होना चाहिए, 5 से, और इक्वल भी होना चाहिए. तो ये कंडीशन होगी तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा. अगर मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई, ग्रेटर देन कर दिया, तो 6 प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा, जो गलत है. ठीक है, क्योंकि हमें 5 तक चाहिए. तो यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन I इज लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, कंडीशन लगा दी, सिंटैक्स था ये. नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं. प्रिंट एफ डबल कोट्स परसेंटाइल डी डबल कोट्स कॉमा I सेमीकोलन. प्रिंट स्टेटमेंट लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, I प्लस प्लस. ठीक है, नाउ अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आएगा. ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे इन एनी कंपाइलर वी गेट द आउटपुट स्क्रीन. सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं कैसे आउटपुट आएगा. ठीक है, मेन फंक्शन में आते हैं. I क्या है, 1. ठीक है, I में 1 आ गया. while I इज लेस देन इक्वल टू 5. जो 1 है 5 से छोटा है कि नहीं है, तो ट्रू है ये. जैसे ट्रू हुआ हम while के अंदर आएंगे. while के अंदर आए, प्रिंट हो गया I क्या है, 1, तो ये प्रिंट हो गया 1. ठीक है, I प्लस प्लस. अब I क्या हो गया, 2, I प्लस प्लस के बाद. ठीक है, जैसे I 2 हुआ फिर दोबारा हम टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएंगे, क्योंकि हमने पता था कि while लूप की बॉडी के बाद हम दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे. अगर वो ट्रू होगा तो दोबारा हम इसके अंदर जाएंगे. तो जैसे ही I क्या हो गया, 2 हो गया. ठीक है, अब हम जाएंगे इसमें दोबारा से. 2 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू. 2 इज लेस देन इक्वल टू 5. सो क्या प्रिंट हो जाएगा, I में क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो गया यहाँ पे. I प्लस प्लस, I हो गया 3. अब चेक करेंगे 3 से. 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू. while लूप के अंदर आए, I प्रिंट हो गया. I में क्या था 3, तो 3 प्रिंट हो गया. अब I क्या हो गया, I प्लस प्लस हो गए 4. अब I हो गया 4. अब 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू. सो ट्रू होने के बाद हम क्या आए, while लूप के अंदर आए, I प्रिंट हो गया. I में क्या 4 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, अब I प्लस प्लस I हो गया 5. 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू. फिर हम while लूप के अंदर आए. ठीक है, while लूप के अंदर आए, क्या प्रिंट हो गया, 5 था इसमें I में. ठीक है, तो 5 प्रिंट हो गया यहाँ पे. अब I प्लस प्लस से क्या हो गया, 5 6 हो चुका है. मीन्स I क्या हो गया, 6 हो गया. ठीक है, जैसे I 6 हुआ, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स. हैंस इट इज फॉल्स, विल मूव आउटसाइड द व्हाइल लूप. ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो इतना मिलेगा सर. ठीक है, क्योंकि हमें 1 to 5 प्रिंट कराना था और 1 to 5 प्रिंट हो चुका है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वी हैव टू यूज व्हाइल लूप इन एनी प्रोग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू सी do while loop. So while loop और do while loop, इनमें डिफरेंस है एक, वो बताएंगे अभी. do while loop, तो डिफरेंस देख लेते हैं पहले. There is only one difference between while and do while. डिफरेंस क्या है, while में सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है. ठीक है, उसके बाद बॉडी में जाते हैं. पर इसमें क्या होता है, डू while में सबसे पहले क्या होता है, हम बॉडी में आते हैं एटलीस्ट वंस,
उसके बाद क्या होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है. सो ये डिफरेंस है. इन व्हाइल लूप we evaluate the test expression first, then move inside the body of while loop. But in do while loop we move inside the body of loop, inside the body of loop once, and then the test expression is evaluated. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है while और do while loop में. अब पढ़ते हैं while loop का सिंटेक्स. ठीक है, सिंटेक्स ऑफ do while loop. Syntax of do while loop. So syntax क्या है इसका? सबसे पहले do, ब्रेसिस ओपन, ब्रेसिस क्लोज्ड, देन while, यहां पे आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन, ब्रेसिस क्लोज्ड एंड सेमीकोलन. ठीक है, सो ये होता है सिंटेक्स ऑफ डू while loop. Now according to the syntax we are going to see the working of do while loop. Working of do while loop. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, बॉडी ऑफ डू while. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, बॉडी ऑफ डू while loop में. उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है. ठीक है, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुआ फिर हम जाएंगे बॉडी ऑफ द डू while लूप में. मतलब सबसे पहले बॉडी ऑफ द डू while लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा. पर while लूप में क्या होता था, पहले टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता था तब हम बॉडी में जाते थे. तो इसमें उल्टा हो रहा है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, विल मूव इनसाइड द बॉडी ऑफ डू while लूप. ठीक है, after that the test expression is evaluated. There are two conditions, that the test expression can be true, can be false. So if it is true, we will move again inside the body of do while loop. Again the test expression is evaluated. If it is true, we will move again inside the body of do while loop. Again the test expression evaluated. If it is true, then we move inside the body of do while loop. So suppose the test expression is false. If the test expression is false, we will move outside the do while loop. Okay, so this is all about working of do while loop. Now let us see the flowchart of do while loop according to the syntax and working of do while loop. Flowchart. The flowchart. Sorry. So first of all, we have seen that we'll move inside the body of do while loop. Inside the body of do while loop. Okay, after that the test expression is evaluated. Test expression is evaluated. If the test expression is true, they will move inside the body of do while loop. Again the test expression is evaluated. If the test expression is true, we will move inside the body of do while loop. Again the test expression is evaluated. If the test expression is true, we will move inside the body of do while loop. So suppose the test expression is false. If the test expression is false, we will move outside the while loop. Okay, so this is all about flowchart of do while loop.
नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ टू यूज डू व्हाइल लूप। तो अब देखने जा रहे हैं हम एग्जाम्पल ऑफ डू व्हाइल लूप। तो एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, टू प्रिंट द सम ऑफ डेसिमल नंबर until the user enter 0। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड studio.h। ओके, देन मेन फंक्शन int main according to the syntax, then after that return 0। नाउ दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डबल डाटा टाइप के। एक वेरिएबल आएगा सम, जिसमें सम कैलकुलेट करके जिसमें हम सम स्टोर करेंगे और उसके बाद प्रिंट कराने के लिए इसी वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, एक सम आ गया और दूसरा वेरिएबल चाहिए हमें एक नंबर, वो नंबर जिस नंबर को हम सम करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डिक्लेयर करा डबल डाटा टाइप का दो वेरिएबल, इनकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, कितने बाइट की मेमोरी होगी, डबल है 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। नाउ इनिशियली हम सम में क्या करा देते हैं, 0 से इनिशियलाइज। ठीक है, कोमा ये तो सम में क्या गया 0। नाउ वी विल मूव फर्दर अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ डू व्हाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल डू आएगा, ब्रेसिस ओपन, ब्रेसिस क्लोज्ड, then while statement, while in the parenthesis we have text expression, parenthesis closed, semicolon। now जैसे कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, डू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। सो अब देखते हैं डू के अंदर क्या लिखना है। सबसे पहले ये नंबर हम एंटर करवाएंगे बाय द यूजर, जो नंबर को हमें सम करवाना है एट ईच इंटरवल। सो प्रिंट कमांड यूज करेंगे यहाँ पे, printf डबल कोट्स एंटर द नंबर सेमीकोलन, देन scanf डबल कोट्स परसेंटाइल, फॉर द डबल वी हैव फॉर्मेट स्पेसिफायर lf डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर सेमीकोलन। सो उसके बाद क्या करेंगे, सम कराने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर सेमीकोलन। ठीक है, और कब तक सम चाहिए, जब तक सम चाहिए जब तक नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, जैसे ही नंबर 0 होगा तो सम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, सम का रिजल्ट। सो कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही नंबर 0 के इक्वल हो जाएगा हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे सम। तो यहाँ पे लिख देते प्रिंट एफ डबल कोट्स परसेंटाइल lf डबल कोट्स कॉमा सम। नाउ आप देखते हैं इसका आउटपुट कैसे रन होगा। सो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे किसी भी कंपाइलर में, सबसे पहले क्या स्टेटमेंट आएगी, एंटर द नंबर। क्यों, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले क्या होगा, डू व्हाइल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। सबसे पहले इस बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर द नंबर, यहाँ पे आ गया एंटर द नंबर इज इक्वल टू, सपोज नंबर मैंने डाल दिया 1। ठीक है, तो नंबर में क्या आ गया 1। ठीक है, यहां मैंने 1 डाला, सपोज कीबोर्ड से मैंने क्या डाला 1, तो नंबर क्या आएगा 1.0। 1.0 क्यों आएगा, क्योंकि डबल डाटा टाइप है। अगर मैं यूजर से कीबोर्ड के द्वारा अगर 1 एंटर करवाता हूं तो इस नंबर में क्या जाएगा 1.0, बिकॉज दिस नंबर इज डबल डाटा टाइप। नाउ मूविंग फर्दर, ये एंटर हो गया बाय द स्कैनफ। आफ्टर दैट सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम क्या है 0, सम इज इक्वल टू 0 प्लस नंबर क्या है 1, सम क्या हो गया 1। ठीक है, अभी सम है 1, सम में डाल देते हैं 1। अब अभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है डू व्हाइल लूप के अंदर वाली। नाउ वी मूव इनसाइड द टेस्ट एक्सप्रेशन।
number is not equal to 0, 1. So 1 is not equal to 0. Yes, it is true. Hence the test expression is true. We will move inside the do while loop. Again ये स्टेटमेंट आती है एंटर द नंबर, एंटर द नंबर इज इक्वल टू, ओके, सपोज मैंने डाल दिया 2, तो नंबर में क्या आ गया अब 2.0. तो जैसे नंबर में 2.0 आया उसके बाद क्या होगा सम. अब सम क्या था 1, अब क्या हो गया सम इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर क्या है 2, सम क्या आ गया 3, तो सम में क्या हो गया 3. ठीक है, सम में 3 हो चुका है. अब आते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन पे अगेन. सो नंबर क्या है 2 इज नॉट इक्वल टू 0. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. Hence the test expression is true. We'll move again inside the body of do while loop. Again the enter the number will be printed. Enter the number is equal to. Now suppose मैंने डाल दिया 3. ओके, तो जैसे मैंने 3 डाला दोबारा से सम होगा. ठीक है, नंबर में क्या आ चुका है 3.0. तो सम इज इक्वल टू सम क्या है 3 प्लस 3, सब में क्या आ गया 6. अब सब में क्या आ चुका है 6. नाउ अगेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड. नंबर इज नॉट इक्वल टू 0. नंबर क्या है 3. सो 3 इज नॉट इक्वल टू 0. इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. सो विल मूव इनसाइड अगेन द बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप. एंटर द नंबर. एंटर द नंबर इज इक्वल टू, सपोज अब मैं डाल दिया 0 नंबर में, तो यहाँ पे क्या गया 0.0. जैसे ही मैंने नंबर में 0 डाला अब क्या होगा सम इज इक्वल टू 6 प्लस 0, तो सम में क्या आ गया 6. सम में 6 है पहले से और अभी भी सम में 6 है. ना ये कंडीशन हो गई पूरी सेटिस्फाई. ना मूविंग ऑन अगेन द टेस्ट एक्सप्रेशन. सो हियर द नंबर इज नथिंग बट 0. सो 0 इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज फॉल्स बिकॉज 0 0 के इक्वल होता है और यहाँ पे नॉट इक्वल है तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो जैसे ये फॉल्स होता है हम क्या जाएंगे आउटसाइड द वाइल लूप. ये वाइल लूप था, ये पूरा वाइल लूप था. वाइल लूप के बाहर आए, बाहर आते हमें क्या दिखा printf. जैसे ही मुझे printf कमांड एनकाउंटर हुई क्या प्रिंट हो जाएगा सम में क्या है 6, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सम, और सम क्या था हमारा 6, तो ये 6 प्रिंट हो चुका है यहाँ पे. ठीक है, तो हमें सम प्रिंट हो गया. उसके बाद रिटर्न 0, जैसे रिटर्न 0 मिलता है प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे. सो अगर हम इसको सम करते हैं 3 + 2 + 1 इज नथिंग बट 6. सो हमें आंसर मिल चुका है 6 बाय यूजिंग द डू व्हाइल लूप. ठीक है, और देख सकते हैं जैसे हमने 0 एंटर करा तो सम क्या आ गया 6. तो हमने ये लिखा था टू प्रिंट द सम ऑफ डेसिमल नंबर अंटिल द यूजर एंटर 0. और आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज मैंने यहाँ पे गलत लिखी थी. आपको पता है यहाँ पे देखो आप सम में क्या है 0 स्टार्टिंग में, अभी सम में क्या है 6. ठीक है, पर जो प्रिंट होगा वो क्या होगा 6.0 बिकॉज हम क्या डाटा टाइप यूज कर रहे हैं यहाँ पे डबल. सो आप बोल सकते हो 6 है ये, पर यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो 6.0 होगा. ठीक है, आउटपुट में. सो आपको समझ आ गया होगा, आपने गलती पकड़ ली होगी क्या करा मैंने. सो दिस इज ऑल अबाउट डू व्हाइल लूप. सो हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं. धन्यवाद.